So very good afternoon, everyone. So we will start the continue the today's afternoon session. So la in morning session we are on this slide, that is the preparation of Siddha formulation like Bhasma. The material obtained the Putta stage. It is tested for the characteristic of Bhasma like, and I was explaining for the Putta stage of your Bhasma preparation. So Putta stage क्या होता है? That is the stage in which you are converting inorganic metals to the ऑर्गेनिक फॉर्म. ठीक है, तो उसके लिए तुम लोग कंटिन्यूसली उसको हीट करते हो. आफ्टर द हीटिंग यू जस्ट एड इट ऑन द कोल्ड वाटर टू कन्वर्ट इट इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक फॉर्म. ठीक है, सो ये जो पुट्ठा स्टेज है ये कंप्लीट होने के बाद देन वी आर एडिंग your herbal ingredient, that is maybe it is in a powder form or it is in a extract form, जो कुछ भी रहेगा, then which will we are added in a bhasma and mix properly and give the further treatment, that is your particular bhasma. So, what are the tests to find out the exactly putta stage of your bhasma? So, there are tests, that is Rekha Puran, Nischandrikaran, Nirdham, that is Niswat, Vat and Varitar. So exactly what is Rekhapuram? Rekhapuram is nothing but the test in which it should be settled in between the finger line and should be barely visible. That means जो कुछ भी उनके particles होते हैं भस्मा के, ठीक है, they are should be such a fine way. मतलब जब भी उसका तुम लोग पुट्टा स्टेज में उसका completely powder form में convert करते हो, तो particles that should be such a fine कि तुम्हारे जो fingers के lines होते हैं, ठीक है, उस लाइन के ऊपर जब तुम लोग को पाउडर लेते हो तो इट शुड बी सेटल इन बिटवीन द लाइन ऑफ योर फिंगर्स, दैट इज योर रेखा पुरन. मतलब जो रेखा इन मराठी में जो बोलते हैं कि हाथ के जो तुम लोग के लाइंस होते हैं रेखा, उस रेखा के अंदर के जो लाइनिंग होते हैं उसमें वो पाउडर फिट होनी चाहिए, दैट इज नथिंग बट योर रेखा पुरन. दैट इज अ स्मूथनेस शुड बी कम फॉर योर पाउडर. ठीक है, दैट इज नॉट बी स्टिकी एंड वेरी स्मूथ एंड वेरी फाइन पाउडर. दैट इज योर रेखा पुरन स्टेज टू find out the complete putta stage is completed. Next, that is your nischandrikaran. That means no shine, it should be completely shineless होना चाहिए, off white type में it should be the material and very smooth. ठीक है, nirdham, that is a no fumes upon the heating. जैसे तुम लोग को पता है कि if the sample is converted into the ash, कोई भी sample, then आप उसको कितना भी हीट करो उसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है, it is the same रहता है. दैट इज जब भी तुम लोग उसको हीट करोगे तो उसमें से कुछ भी फ्यूम्स नहीं निकलने चाहिए. That is a particular stage, that is Nirdham. Niswat, it should be the completely tasteless. Varitar, that is it should be float on a water. मतलब उसका particle size it should be too small है, वो इतना हल्का होता है कि it should be the float on water. Suppose पानी के ऊपर डालने के बाद particle नीचे settle हो रहे, that means you have to still not completely cover your putta stage. So if the material fail to any of these stages, it is again subjected to the पुट्टा स्टेज. मतलब इसमें से किसी के अंदर भी वो फेल होता है तो तुम लोग को अगेन से उसको सेम पुट्टा स्टेज जो है वो कंटिन्यू करना. So these are the some tests or example of some tests which is performed in process analysis. जो हम लोग ने देखा, सबसे पहले तो हम लोग ने देखा तैला का देखा. तैला के बाद वी आर सीन पाका, दैट इज अ लिक्विड जो सिरप होता है. देन वी आर सीन फॉर द बसमा, दैट इज अ पाउडर फॉर्म. मतलब पाउडर फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड तैल, ऐसे तीन प्रिपरेशन के लिए जो कुछ भी इंटरमीडिएट टेस्ट होते हैं तो हम लोग ने इन डिटेल में देखे. So these three examples can be enough for your exam, and if you want further example, definitely they are available in PDF. You can read. I will forward the material. ठीक है, so these examples to giving to just understand कि exactly in process analysis के लिए how exactly they are performing, what are the intermediate tests they are fine. Okay, so here we are covering completed your next subtopic, that is your approaches to standardization of standardization of ASU. Now we will start, that is your QC for the finished product. So QC test for finished product, इसमें से जो कुछ भी test है, maximum test which is you are already known in raw material analysis. So that is 80% analysis is almost similar as your raw material analysis, but there are few um, tests which are extra additionally we are performing for the QC analysis. Let's see the what are these tests. Okay, so finished products and formulation are tested for various specification and quality control parameter to ensure their quality, safety and efficacy. मतलब जो भी स्टार्टिंग से हम लोग ने मटेरियल यूज किया है उसके जो फाइटोकेमिकल या फिर उसका जो भी इफिकेसी है वो सेम एज यूर रॉ मटेरियल से जो भी हम लोग प्रीवियस वाली इफिकेसी था वैसे है.
एंड फिनिश प्रोडक्ट इज कम्प्लीटली सेफ टू कंज्यूम। इसका एश्योरिटी देने के लिए जो भी टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं, these are nothing but the QC finish test. So let we will see the one by one. Actually, there are four types of clinical testing. That is your physical parameter, then clinical testing, then HPLC and sorry spectroscopy and chromatographic analysis and microscopy. तो ये सारा पार्ट जो है ये तुम लोग को पहले से पता है, लेकिन फिजिकल पैरामीटर में देयर आर फ्यू टेस्ट व्हिच मे नॉट बी यू अवेयर about it, so we will discuss that particular test. ठीक है, सो ऑर्गोनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब सबसे पहले जब भी प्रोडक्ट आता है, आइडियली जब भी तुम लोग का फिनिश प्रोडक्ट रेडी होता है, वो जब भी तुम लोग उसको क्यूसी एनालिसिस के लिए लेते हो, तो सबसे पहले व्हेनेवर यू आर ओपनिंग द प्रोडक्ट, सबसे फर्स्ट में जो टेस्टिंग होता है वो होता है माइक्रोबियल एनालिसिस, जो मैंने ये पीपीटी में सबसे लास्ट में डाला है। बट आइडियली जब भी यू जस्ट ओपन द सील, फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर द सॉरी यू हैव टू परफॉर्म द माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। व्हाई? क्योंकि जब भी तुम लोग प्रोडक्ट ओपन करते हो उसके बाद में भी बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर और बाकी सारे एनवायरमेंट का उसके ऊपर इफेक्ट होते माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकते हैं, जैसे कि लिक्विड सिरप है या फिर कोई पाउडर फॉर्म वाला सैंपल है, सपोज जैसे कि चूर्ण वगैरह है, तो इट्स डिपेंड कि तुम लोग कौन से एनवायरमेंट में तुम लोग रखते हो। उसको प्रॉपरली सेफ पैक करके रखते हो तो डेफिनेटली इसमें फंगस ग्रो नहीं होगा, लेकिन ऐसे ही ओपन रख सकते हो तो उसमें ग्रो हो सकता है। सो मे बी तुम लोग का एक्चुअली जो प्रोडक्ट का रिजल्ट है एंड एक हफ्ते के ओपन करके एक हफ्ते के बाद अगर तुम लोग रखोगे तो डेफिनेटली माइक्रोबियल काउंट ज्यादा ही आएगा, बिकॉज तुम लोग ने एनवायरमेंट में एक्सपोज किया। ऐसा नहीं कि ज्यादा आएगा मतलब इट इज हार्मफुल फॉर बॉडी, इट शुड बी विद इन द लिमिट में ही रहेगा, लेकिन ओरिजिनल उसका माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन जो है वो डाटा हम लोग को नहीं मिलेगा। वो एयर में एक्सपोज होने के बाद जो भी माइक्रोबियल ग्रोथ है उसका रिजल्ट हम लोग को मिलेगा। इसीलिए जब भी फिनिश कोई भी फिनिश प्रोडक्ट जब भी तुम लोग एनालिसिस के लिए लेते हो तो सबसे पहले उसका माइक्रोबियल एनालिसिस होता है, देन बाकी सारी चीजों का एनालिसिस होता है। ठीक है, तो उसके बाद माइक्रोसकोप इमेजिन करो कि तुम लोग के पास अभी अल्बुलसा सिरप का तुम लोग ने बैच बनाया, तो आउट ऑफ 1000 बॉटल फॉर 500 ml ईच बैच में तुम लोग प्रिपेयर करते हैं, तो रैंडमली 1000 में से इमेजिन करो तुम लोग ने 10 बॉटल के सैंपल्स रैंडमली यूज किए फॉर क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस के लिए। तो उसमें से जैसे कि तुम लोग डेफिनेटली माइक्रो डिपार्टमेंट इज ऑलवेज डिफरेंट देन योर एनालिटिकल टेस्टिंग, तो उसमें से 3 to 4 बॉटल जो रहेंगे वो डायरेक्टली तुम लोग के माइक्रोबियल एनालिसिस के लिए जाएंगे एंड बाकी के तुम लोग को केमिकल एनालिसिस के लिए। सपोज यू हैव टू ओनली 5 बॉटल्स ओनली, मतलब एक तुम लोग ने रिमूव किया है सैंपलिंग के टाइम पे, तो अगर तुम लोग को सेम बॉटल का माइक्रोबायोलॉजिकल एंड फिजिकल लेबोरेटरी में यूज करना है, तो बॉटल फर्स्ट विल बी ओपन इन माइक्रोबायोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दे कलेक्ट द वॉट एवर सैंपल दे वांट टू फॉर एनालिसिस, दे डायरेक्टली उसका जो भी स्क्रीनिंग वगैरह है या फिर उसका जो भी सैम्पलिंग वो करने के बाद देन बॉटल कम टू योर डिपार्टमेंट। तो उसके बाद न्यू बॉटल जब तुम ओपन करते हो तो उसके सबसे पहले टेस्टिंग होता है, वो होता है टेस्ट, ओडर, फील एंड टच। उससे पहले जो सबसे पहले टेस्ट करते हैं जैसे कि सील बॉटल होता है, तो कंटेंट दैट इज मतलब उसका नेट वेट कितना है, जैसे कि तुम लोग ने लिखा है कि 200 ml पर बॉटल, तो डेफिनेटली हम लोग 200 ml मेजरिंग सिलेंडर से उसके अंदर फिल नहीं करते, इट्स मशीनरी या फिर सेटअप से वो फिल होता है। तो पहले रैंडमली देखा जाता है कि जितना भी ml तुम्हारे सैंपल मेंशन किया है तुम्हारे बॉटल के ऊपर, कि सच में उतना ml या फिर उतना क्वांटिटी ऑफ सैंपल है, उसका जो भी वेट है कि उतना वेट ऑफ सैंपल जो भी तुम लोग ने कंटेनर में पैक किया उतना है या नहीं, वो चेक करते हैं। वो चेक करने के बाद दे आर स्टार्टिंग विद द लाइक फिजिकल अपीयरेंस। कलर जैसे कि बोला है कि ब्राउनिश कलर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट ब्राउनिश कलर, देन यू विल सी द इफ देयर इज अ ट्रांसपेरेंट ब्राउनिश कलर द टेस्ट विल बी फास्ट। ठीक है, पिंजेंट या फिर स्वीटर और बिटर टेस्ट जैसे उसका टेस्ट रहेगा। देन ओडर स्पेसिफिक, इमेजिन करो कि स्पेसिफिक स्मूदी ओडर आ रहा है या फिर स्वीट ओडर हो रहा है, तो उसके हिसाब से उसका आएगा। फील, फील में समटाइम्स इसमें भी स्मूथ, इसमें भी स्टिकी, जो कुछ भी रहेगा दैट इज अ organoleptic characteristic. Then all the physical parameter like pH, uniformity, dosage form, water content as a value are determined for the all the formulation. मेजरली ये टेस्ट सभी के लिए करते हैं दिस ईयर। यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोसेज फॉर्म मतलब क्या कि जो कुछ भी तुम लोग का कंसिस्टेंसी वो सेम होना चाहिए, जैसे कि टैबलेट प्रिपेयर कर रहे हो तो हर एक टैबलेट का ऐसे मिनिमम 5 टैबलेट का ऐसे किया तो वो सेम होना चाहिए, या फिर ईच पैकेट में कितने टैबलेट जा रहे। लिक्विड फॉर्म में अगर सैंपल है तो उसका कंसिस्टेंसी जो कलर है या फिर पार्टिकुलेट मैटर जो है वो यूनिफॉर्मली सारा इसमें स्प्रेड होना चाहिए। देन अगर लिक्विड फॉर्मुलेशन है, स्पेसिफिकली व्हाट आर द टेस्ट परफॉर्म फॉर द लिक्विड फॉर्मुलेशन,
विस्कोसिटी, आई थिंक विस्कोसिटी एवरीबॉडी नोज एग्जैक्टली क्या होता है. उसका टेस्ट कैसे करता है, मेथड में बताती हूँ. देन क्लियरिटी, फ्लोएबिलिटी, फ्लोक्यूलेशन, सेडिमेंटेशन, सेटलिंग रेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी. विस्कोसिटी एंड स्पेसिफिक सॉरी, विस्कोसिटी लिटिल बिट डिफरेंट. विस्कोसिटी में क्या होता है, हाउ मच अमाउंट ऑफ योर पर्टिकुलर लिक्विड इज विस्कस. तो उसके लिए उसका एक ट्यूब होता है 1 मीटर सेंटीमीटर का. जैसे तुम लोग के घर में अगर ट्यूबलाइट होते, पुराने टाइप के जो ट्यूबलाइट्स होते थे, वैसे सेम ग्लास का एक ट्यूब होता है सेम साइज में, वैसे उसका साइज एंड शेप होता है जो वर्टिकल इसमें जाता है. एंड देयर इज अ सम स्पेसिफिक ऑयल प्रेजेंट इन दैट ट्यूब. अभी मुझे पता नहीं पैराफिन ऑयल होता है या कोई और ऑयल होता है, मैंने बहुत पहले टेस्टिंग किया था ये. एंड देन उसमें से फिर तुम्हारे जो सैंपल्स वगैरह होते हैं वो उसमें से डाल के, अगर वो सॉलिड फॉर्म वाले सैंपल्स रहेंगे तो वो उसमें से डालते हैं एंड उसके हिसाब से चेक करते हैं कि उसका विस्कोसिटी कितना है. तो सॉरी, लिक्विड सैंपल है तो लिक्विड सैंपल वो पर्टिकुलर ट्यूब में फिल करते हैं. एंड ट्यूब फिल करने के बाद उसका एक ऐसे बॉल टाइप में बॉल आता है, वो बॉल उस ट्यूब में से डालते हैं. एंड वो जो बॉल का नीचे आने का स्पीड होता है, उस स्पीड के हिसाब से दे आर फाइंड आउट द हाउ मच विस्कस योर लिक्विड. जब को ज्यादा लिक्विड विस्कस रहेगा तो बॉल को नीचे आने में टाइम होता है वो कम लगता है, ज्यादा लगता है. ज्यादा कम विस्कस रहेगा तो जो टाइम लगता है वो कम लगता है. दैट इज एक्चुअली हाउ दे आर मेजर द विस्कोसिटी. अभी ये मैंने टेस्ट बहुत पहले किया था, अभी पता नहीं दे रहा, मे बी एडवांस टेस्ट आए होंगे, बिकॉज व्हेन आई वाज इन अ ट्रेनिंग ड्यूरिंग माय एमएससी, दैट टाइम फॉर लिक्विड फॉर्मुलेशन के लिए दे आर परफॉर्मिंग सच काइंड ऑफ एनालिसिस फॉर देयर लिक्विड सिरप व्हिच इज मेड टू इंक्रीज योर हीमोग्लोबिन इन बॉडी. मतलब आयरन का कोई तो सिरप वो बनाते थे, उसके लिए दे आर टेकिंग द विस्कोसिटी बाय दिस मेथड. Next, that is the clarity. मतलब nothing but that is so your solution is completely clear or transparent. Sometimes they are said particulate matter. Sometimes there should be completely clear liquid. That is a clarity test. That is a transparency check करते हैं उसमें light के अंदर से. Then flowability rate. That is वो उसका उसके ऊपर उसका flowability rate कितना है वो check करते हैं कि exactly वो flow होता है मतलब वो. उसके बाद sorry, flocculation is nothing but your flock in the sense कैसे बताऊँ, क्लॉट फॉर्म होता है ना, दैट इज अ फ्लोकुलेशन रेट. मतलब जैसे कि तुम्हारे सैंपल में अगर पार्टिकुलेट कंटेंट रहेगा, जैसे कि हर एक बॉटल मतलब जनरली मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है कि प्लीज शेक बिफोर यू आर टेकिंग, बिकॉज मे बी समटाइम्स क्या होता है कि जो तुम लोग का हर्बल एक्सट्रैक्ट उसमें से एकदम स्मॉल स्मॉल पार्टिकल हो गए तो वो समटाइम्स सेटल हो जाते हैं. ठीक है, तो उसके बाद वो यूनिफॉर्मिटी के लिए एवरी टाइम पे बोलते हैं कि जब भी तुम लोग को सॉल्वेंट मतलब सिरप लेना है, यू हैव टू शेक योर सिरप एंड देन. तो फ्लक्चुएशन रेट इज नथिंग बट द सेम. जो पार्टिकुलर सेटल होते हैं या फिर वो जब भी लिक्विड में रहेंगे, मे बी फ्रॉम द क्लम या फिर क्या वर्ड अभी इसके लिए मैं यूज करूँ, मतलब वो पार्टिकल एक दूसरे के साथ चिपक के उसके से बॉल टाइप में फॉर्म होता है. इट इज अ क्लम, और किसी ने तो चैट में लिखा है मे बी. तो दैट इज योर फ्लॉक्युलेशन रेट. ठीक है, ये समझ में आया एग्जैक्टली क्या होता है फ्लॉक्युलेशन एंड फ्लोएबिलिटी. Yes, type करो if you understood these both the terms. Okay. Next is the sedimentation rate. ठीक है, sedimentation के ऊपर that is the settle down rate of the settle down of your particulate. मतलब ये बेसिकली डू फॉर द पाउडर वगैरह होता है ना, उसके लिए भी यूज करते हैं, या फिर लिक्विड फॉर्मुलेशन के लिए कुछ अगर उसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर मिक्स है, देन आल्सो दे आर चेकिंग द सेडिमेंटेशन रेट. उसका सेडिमेंटेशन रेट के लिए क्यों क्यों चेक करते हैं, बिकॉज जब तुम लोग सैंपल लेते हो तो वो जब मिक्स करते हो तो उसका यूनिफॉर्मिटी इज डिपेंड अपॉन योर फ्लॉक्युलेशन, सेडिमेंटेशन एंड फ्लोएबिलिटी रेट. इसके ऊपर वो डिपेंड होता है. Settling rate, it is nothing but the same sedimentation rate. Specific gravity, that is nothing but your वेट पर एमएल. स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट द वेट पर एमएल. तो वो कैसे चेक करते हैं, उसका एक बॉटल आता है या फिर कोई भी एम्प्टी बॉटल तुम लोग मतलब अगर करना है तो यू कैन टेक यूर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ऑल्सो 10 to 15 ml, और उसका एक स्पेसिफिक ग्रेविटी का बॉटल आता है उसके साथ अलोंग विद द उसका लीड होता है. तो एम्प्टी बॉटल का पहले वेट लेना है. ठीक है, उस बॉटल जैसे कि एम्प्टी बॉटल सपोज 10 ml का बॉटल है, तो एम्प्टी 10 ml के एम्प्टी बॉटल का तुम लोग को वेट लेना है. उसके बाद 10 ml तुम लोग उसके अंदर लिक्विड फिल करोगे एंड उसका फिर से वेट लोगे. ठीक है, तो जो भी तुम लोग का डिफरेंस आएगा वेट का, तो इमेजिन करो वेट आता है पर्टिकुलर सैंपल का 12.2 ग्राम.
ठीक है। तो 12.2 ग्राम डिवाइडेड बाय 10, बिकॉज 10 ml तुम लोग ने लिक्विड लिया था एंड बॉटल उसका जो वेट है वो 12.2 था, मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी की, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है या फिर वेट कर ml कितना है, इट इज नथिंग बट योर डेंसिटी, जो हम लोग वाटर के डेंसिटी के साथ कंपेयर करते हैं. So these are the some tests which are specifically preferred for the liquid formulation. Anybody is having any doubt up till now? I think no. So just write no or n so I can continue with the next slide. Just write no. Anyone? Okay. Next. Okay. Solid dosage form like the tablets, which are pills, capsules. The parameter are checking for that like average weight, hardness, friability, disintegration, and dissolution. I think everybody knows very well about this test because you are already performed this all the tests in your practical in first year. So I don't want to explain this all the tests. Okay. I hope you are known everything very well. So we will move for the next slide. नेक्स्ट दैट इज योर क्रोमेटोग्राफी. कैसे, ये भी तुम लोग को पता है, जो हम लोग ने सेम ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है इन योर रॉ मटेरियल एनालिसिस की. द वेरियस क्रोमेटोग्राफिक मेथड लाइक टीएलसी, एचपीटीएलसी and HPLC are extremely used to determine the phytochemical quality and quantity for the formulation. It is also used to analyze the assay of the principal ingredient and percentage purity assay and HPTLC fingerprinting to find out the other content. केमिकल एनालिसिस किधर गया? सॉरी, ये स्लाइड मिस हुआ था. ठीक है. सो व्हाट वी आर परफॉर्मिंग एग्जैक्टली इन केमिकल एनालिसिस. अभी तक तो जो था वो क्या था, फिजिकल. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एनालिसिस? फिजिकल एनालिसिस में हम लोग कोई भी रिएक्शन नहीं करते. That is nothing but the physical analysis. Chemical analysis where we are actually find out the chemical reagent along with some chemical reactions जिसमें होते हैं, उससे हम लोग यूज करते हैं. जैसे कोई और केमिकल उसके अंदर मिक्स करके जो भी एक्सट्रैक्टिव वैल्यू वगैरह निकालते हैं या फिर जो भी रिजल्ट आता है, यूर केमिकल इवेल्युएशन. एंड जस्ट फिजिकल पैरामीटर देख के जो एनालिसिस होते हैं वो हम लोग के फिजिकल एनालिसिस होते हैं. So extractive value like water, alcohol, ether extractive value are determined. जैसे कि तुम लोग ने इमेजिन करो कि वाटर एक्सट्रैक्ट डाला था, उसका जो भी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल में वैल्यू आया होगा, तो अभी जब तुम लोग उसका वाटर एक्सट्रैक्ट करोगे फिर से, तो उसका वैल्यू ऑलमोस्ट उसके सिमिलर या फिर विद इन द रेंज होना चाहिए. दैट इज द एक्सट्रैक्टिव वैल्यू फॉर फिनिश प्रोडक्ट. ठीक है. नेक्स्ट, अदर पैरामीटर लाइक वोलाटाइल ऑयल, ब्रिटलनेस वैल्यू, स्वेलिंग इंडेक्स, फोमिंग इंडेक्स are determined by the specific formulation. ठीक है. वोलाटाइल ऑयल सबको पता है. ब्रिटलनेस, उसका भी एक टेस्ट आता है, दैट इज टू फाइंड आउट द ब्रिटल वैल्यू. स्वेलिंग इंडेक्स मतलब वो कितना कंपाउंड स्वेल होता है, या फिर फोमिंग इंडेक्स, उसका भी एक केमिकल, इट्स अ सिंपल वेट केमिस्ट्री का टेस्टिंग होता है, जिससे वो कितना फूलता है या फिर वो कितना, उसका एक ट्यूब होता है अपना 10 ml का जो सिलेंडर होता है ना, वैसे टाइप में. एंड उसके अंदर फिर वो रिएजेंट डाल के they are just find out कि how much they are floating और उसका swell कितना होता है या फिर foam कितना form होता है, उसका chemical reaction से they are find out this particular index. To determine the class of phytochemical like tannin, glycoside, alkaloid and lignin, ये तुम लोग को already पता है. Steroid is missing in this. So ये सारी चीजें जो है वो हम लोग chemical analysis में करते हैं. Next, that is your heavy metal content is determined for elemental analysis, that is arsenic, cadmium, lead, mercury are determined as a required by the various regulatory guidelines. So these are some chemical parameters. We will move for the next slide. Impurity and residual solvent rising from the manufacturing process are determined. This is also very much important point here exactly. So what is exactly impurity? Okay. Suppose you are preparing any chemical compound. So A plus B is your raw material. Then when your product is formed, C is your main product and D is your byproduct which is may form after along with the C. मतलब ऐसा है कि जब A react with the B, not necessary कि all A is completely react with the all B and you get 100% pure of compound C. Definitely some amount of A is maybe still in your original form, some amount of B always present in your original form and maybe कुछ रिएक्शन होते वो कुछ और रिएक्शन होकर कुछ डी करके अलग से और एक कुछ केमिकल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है. सो
सी इज योर मेन प्रोडक्ट, बट जब तुम लोग का प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो तुम्हारे कंटेनर में अलॉन्ग विद द सी वेरी वेरी लेस अमाउंट में ए, मतलब एकदम स्मॉलेस्ट अमाउंट में ए बी एंड सी प्रेजेंट रहता है. सो दैट ऑल थ्री आर कॉल्ड एज अ इम्प्यूरिटीज. ठीक है. देन रेसिड्यूअल सॉल्वेंट राइजिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. जैसे कि मैंने बोला कि जब हम लोग एनालिसिस मतलब जो भी चीजें करते हैं तो पर्टिकुलर फाइटोकेमिकल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वी आर यूजिंग लॉट्स ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है. तो देयर आर चांसेस कि सम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट स्टिल रिमेन इन योर प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने तुम लोग को मॉर्निंग में एक एग्जांपल दिया था, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर सोल्यूबल स्टार्च फ्रॉम पोटैटो. तो मैंने बोला था कि डायरेक्टली उसको वाटर में मिक्स करो, वाटर में मिक्स करने के मतलब उसको मिक्सर में ग्राइंड करो अलोंग विद द वाटर, और छलनी से छल करो. उसकी छिलने से करने के बाद क्या होता है, जो वाटरी लिक्विड होता है वो उसको इवेपोरेशन को बहुत टाइम जाता है. ठीक है. तो उसके बाद you just extract, add some amount of that is your alcohol, ethanol, 70% ethanol वगैरह मिक्स करोगे, एंड देन उसको तुम लोग को मतलब वो जो रोटरी शेकर होता है जिसके ऊपर इवेपोरेशन के लिए रखोगे तो वो जल्दी रिड्यूस होता है. ठीक है. या फिर लिक्विड लिक्विड से कन्वर्ट करो, मतलब वाटर से तुम लोग इसमें ले लो एंड देन यू जस्ट रिमूव, तो उससे क्या होता है वाटर कंटेंट जल्दी रिड्यूस होता है. सो सम जब भी वाटर इवेपोरेट होता है तो देयर आर चांसेस कि फ्यू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में बी प्रेजेंट अलोंग विथ योर रेसिड्यू. या फिर कोई और फाइटोकेमिकल है जिसको एक्सट्रैक्शन के लिए तुम लोग ने लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन मेथड यूज किया है, जिसमें इमेजिन सिंपल ऑयल ऑयल एक्सट्रैक्शन तुम लोग कर रहे हो प्लांट में से, तो वाटर के साथ तुम लोग का जो भी डिकॉक्शन था इट इज इन अ वाटर. सो डाइथाइल ईथर एंड पेट ईथर से तुम लोग ने उसको एक्सट्रैक्ट किया. उसके बाद तुम लोग ने पेट ईथर को इवेपोरेट किया. लेकिन डू यू हैव गारंटी दैट 100% पेट ईथर इज इवेपोरेटेड? तुम लोग इवेपोरेट करने के बाद कोई टेस्ट करके वो चेक किया कि उसके अंदर कुछ भी मतलब पेट ईथर है? नहीं. सो कभी कभी ऐसे होता है कि एकदम लेस अमाउंट में जो सॉल्वेंट है उसमें ऑलवेज प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेसिड्यूअल सॉल्वेंट. तो इफ actually the solvent should not be present, but suppose the solvent is present, so it should be within the prescribed limit. मतलब उसका कुछ तो लिमिट है, उससे ज्यादा वो नहीं होना चाहिए. वो जिसका एनालिसिस कर रहे थे द रेसिड्यूअल सॉल्वेंट एंड इम्प्यूरिटीज प्रोफाइलिंग is called as the impurity or residual solvent analysis in your finished product. Most probably these tests are performed along with the HPLC and GC because उसमें बहुत कम amount में भी रहेगा, then you can easily find out and उसके trace level जो है we can easily find out. So here we completed the chemical analysis. Then next जो था that is your chromatographic assay which I have already explained. I think there is a last slide for spectroscopic. Hope so. सो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस के लिए 3 इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, यूवी विजिबल एएस एफटीआर. मैंने जानबूझ के स्लाइड में ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ भरा नहीं है बिकॉज यू आर ऑलरेडी नोन एग्जैक्टली कौन से टाइप के ऐसे हम लोग इसके ऊपर करते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस. देन इट इज योर नेक्स्ट दैट इज माइक्रोबियल टेस्टिंग. इट इज ऑल्सो सेम फॉर यूर जो कुछ भी तुम लोग ने रॉ मटेरियल के एनालिसिस पे किया था, टोटल बैक्टीरियल काउंट, टोटल फंगल काउंट एंड स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ऐसे. किसी किसी मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है, एंड मैंने जितना भी ऑब्जर्व किया है मैक्सिमम लेबोरेटरी में विटामिन सी भी माइक्रोबियल टेस्टिंग से फाइंड आउट करते हैं कि हाउ मच एग्जैक्टली माइक्रो विटामिन सी इज प्रेजेंट. उसका उसका टाइट्रेशन का प्रोसीजर होता है, लेकिन उससे पहले उसको कुछ ऑर्गेनिज्म की ट्रीटमेंट देते हैं. तो ये भी एक टेस्ट करते हैं फिनिश प्रोडक्ट के अंदर इफ सपोज योर कंपाउंड कंटेन विटामिन सी, लेकिन नॉट नेसेसरी ऑलवेज, पर मेजरली माइक्रोबियल टेस्टिंग किस लिए होता है, दैट इज योर मतलब infection, that is a bacterial and total fungal count, it should be the within the limit. So here we are completed our complete topic, that is a approaches of standardization in ASU, that is your raw material analysis, quality control of raw material, quality control of your intermediate or in process product and quality control of your finished product. ठीक है. सो यहाँ तक किसी को सबको समझ में आया अभी तक हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं? Anybody is having any doubt up till now? So the session is open for discussion because अभी अपने पास टाइम है. Instead of starting with a new topic, I will keep मतलब for open for a discussion 2-3 minutes. Otherwise, I will start the next concept. I just open the chat box. नो मैम. ओके, वेरी गुड. तुम लोग को कुछ डाउट ही नहीं है? तुम लोग होते हो ना लेक्चर में या सोते हो, या फिर मैं पढ़ाता हूँ जो तुम लोग को समझ में आता है?
ओके, सो नो डाउट, तो ठीक है, आई होप एवरीबडी इज क्लियर। सो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा बिकॉज बहुत से टेस्ट है वो रिपीटेडली है। इसके बाद के नेक्स्ट जो टॉपिक है, देयर आर टू टॉपिक्स। द फर्स्ट टॉपिक दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ क्यूसी, द क्यूसी मेथड डेवलपमेंट फॉर योर finished product, sorry, development of method development and QC analysis in specific product। ठीक है, जैसे कि कोई तुम लोग का प्रोडक्ट है तो उसके लिए तुम लोग खुद से मेथड डेवलप कैसे करोगे एंड क्वालिटी कंट्रोल का। इन शॉर्ट, प्रिपरेशन ऑफ एसओपी फॉर ए न्यू डेवलपिंग प्रोडक्ट। सो ये टॉपिक हम लोग हमेशा, मतलब जब भी तुम लोग का एक्चुअली कॉलेज में लेक्चर्स होते हैं, सो वी आर गिविंग एज यूर असाइनमेंट, जिसमें अभी तुम लोग को करना क्या है एग्जैक्टली, यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि डिसाइड करो लिक्विड, मतलब कोई भी सिरप, कुछ भी प्रोडक्ट ले सकते हो, नॉट ओनली सिरप। आयुर्वेदिक कोई भी फॉर्मुलेशन, ठीक है, जो भी फॉर्मुलेशन आयुर्वेदा में है। अभी व्हाट आर द फॉर्मुलेशन आयुर्वेदा, यू आर ऑलरेडी नोन इन यूर लास्ट ईयर के सिलेबस में तुम लोग को बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे। अगर इफ यू डोंट रिमेम्बर, दैट इज अवलेहा, सिरप, कुगुलू, चूर्णा, भस्मा, these are the different types। पे यूनानी मेडिसिन में तुम लोग का रूह अफ़ज़ा है, देन वो क्या था, सुकून था, खोल था, देन ऐसे बहुत सारे तुम लोग के मैंने जैसे एग्जांपल दे कि ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है या फिर एएसयू के फॉर्मुलेशन है, उसमें से कोई भी एक फॉर्मुलेशन तुम लोग को लेना है। ठीक है, आई विल पोस्ट दिस असाइनमेंट ऑन गूगल क्लासरूम एंड तुम लोग को उसके लिए एसओपी प्रिपरेशन करना है फ्रॉम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। मतलब जस्ट इमेजिन करो कि आई वांट टू प्रिपेयर ए एसओपी फॉर अवलेहा। Avaleha is nothing but the Chavanapras. Okay, it is Chavanapras is the one of the example of your Avaleha. So Avaleha is a semi-solid material. So imagine करो कि I want to prepare a new product Avaleha from mango pulp। मतलब उसके अंदर मेरा मेजर इंग्रेडिएंट रहेगा, I just giving example, हाँ। तो लेकिन तुम लोग जब दिमाग लोगे तो सोच के लगाना, बिकॉज उसके अंदर सी, बिकॉज दीज आर द मेडिसिन। ठीक है, फ्रूट जाम वगैरह होते हो खुशी के, तुम लोग ऐसे मतलब टेस्ट के लिए खाते हो, लेकिन च्यवनप्राश इज नॉट जस्ट फॉर द टेस्टिंग, दिस इज एक्चुअली द मेडिसिन। तो जैसे कि इमेजिन करो कि मुझे कोई च्यवनप्राश बना रहा है, उसका बेस इंग्रेडिएंट मैंने मैंगो का पल्प लिया है। व्हाई? बिकॉज मैंगो पल्प हैविंग सच मेडिसिनल प्रॉपर्टी व्हिच आर वेरी यूजफुल फॉर योर बॉडी। ठीक है, तो अलोंग विद द एंड उसका एक स्पेसिफिक टेस्ट है, अलोंग विद पल्प, इंस्टेड ऑफ आंवला का जो मतलब मैंने बोला था मैट्रिक्स यूज करने जगह मैंने मैंगो पल्प का मैट्रिक्स यूज किया है। along with the mango pulp, these are the जड़ी बूटी, मतलब जो भी तुम लोग के हर्बल मटेरियल है वो मैंने इन्वॉल्व किए एंड उससे मैंने मेरा प्रोडक्ट बनाया। तो तुम लोग को खुद से मेथड डेवलप करना है फ्रॉम टू द रॉ मटेरियल, कि व्हाट आर द रॉ इंग्रेडिएंट यू आर यूजिंग। तो अगर जो भी रॉ, इमेजिन करो देयर आर 10 रॉ इंग्रेडिएंट या फिर 2-4 रॉ इंग्रेडिएंट्स यू आर यूजिंग। सो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट, ठीक है, उसके लिए कहाँ कहाँ से रिसर्च करना है, मतलब हर्बल फार्माकोपिया से मैंने ये फाइंड आउट किया वगैरह, ऐसे ऐसे तुम लोग लिखोगे। देन वो पर्टिकुलर जो भी इंग्रेडिएंट है उसके लिए रॉ मटेरियल के लिए क्या क्या टेस्टिंग रहेंगे। सो 3 मटेरियल्स, दीज आर द टेस्ट फॉर रॉ मटेरियल टेस्ट। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस में उसके लिमिट क्या रहेंगे, जैसे कि सपोज मैंगो पल्प है तो मैंगो पल्प का कंसिस्टेंसी इतना होना चाहिए, उसका कलर ये होना चाहिए। मैंगो पल्प के अंदर शुगर होता है तो शुगर का लिमिट इतना होना चाहिए, ज्यादा भी शुगर ही नहीं होना चाहिए या फिर शुगर कम नहीं होना चाहिए। सो दीज आर द स्पेसिफिक कैरेक्टर फॉर मैंगो पल्प। अलॉन्ग विथ सपोज मैंने यूज किया कि ट्रिफला यूज किया है, तो ट्रिफला के अंदर क्या क्या आता है, दैट इज योर हरड़ा बेड़ा जो भी होता है, तो उसके व्हाट आर द प्रॉपर्टीज एंड उसके लिए लिमिट्स क्या रहेंगे, ये रॉ मटेरियल का एनालिसिस हुआ।
Okay, now you can hear me. ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि तुम लोग को तुम्हारा खुद का एसओपी बनाना है ऑन यूर एनी प्रोडक्ट, ठीक है, कि तुम लोग को एक प्रोडक्ट डिसाइड करना है जो तुम लोग खुद से बनाओगे। तो स्टैंडर्ड उस प्रोडक्ट का कंप्लीट स्टैंडर्डाइजेशन तुम लोग करोगे स्टार्टिंग से, फ्रॉम द लिटरेचर सर्वे से लेकर टिल द फिनिश प्रोडक्ट। अभी तक जो कुछ भी टर्म हम लोग ने सीखे हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एएसयू, बाय अप्लाइंग दिस अप्रोच और प्रिंसिपल्स यू विल प्रिपेयर योर ओन प्रोडक्ट। एंड ओन प्रोडक्ट प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, you will prepare the SOP how exactly you are going for that particular product preparations, and you will submit the report, ठीक है। This is your assignment. I will post the assignment till tomorrow on your Google Classroom, and uh, 1 week is enough for you to submit the assignment. So I will give 1 week का time, ठीक है। So you should complete your assignment and post in 1 week, ठीक है। So okay, so उसके बाद हम लोग का एक लास्ट का टॉपिक बचता है from this unit, that is your stability studies or shelf life analysis in ASU duct, that is why ma'am 2 week please। Okay, ठीक है, we will giving the 15 days, ठीक है। So I will give the 15 days for your assignment। सो एटलीस्ट बट प्लीज कंप्लीट विद इन द 15 days। आई नो इसके लिए तुम लोग को थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, तो ओके वी विल गिव द 15 days का टाइम, ठीक है। ओके, सो सो फ्रॉम दैट पॉइंट वी विल कंप्लीट ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स। ओनली एक लास्ट का पॉइंट बचता है, तो स्टेबिलिटी स्टडीज, विच आई विल कंटिन्यू इन योर नेक्स्ट लेक्चर। मैं अभी स्टार्ट नहीं करती, आई विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन। सो व्हाट इज एग्जैक्टली वी आर स्टडिंग, दैट इज जो कुछ भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसका शेल्फ लाइफ स्टडी या फिर स्टेबिलिटी स्टडी, हाउ एग्जैक्टली वी आर परफॉर्मिंग, what are the difficulties, and how we will solve that particular difficulty. That will the last topic from this unit, which will be completed in the tomorrow's session, and there we will complete this particular unit and we will start our next topic. So I hope everybody have everything is clear for everybody, and we so if suppose everything is clear, so better I will stop here. So next topic I will continue in your next session. So can I stop the meeting, or if you have any doubt, you want to do any discussion, you can, the session is open. No doubts, man. Okay, ठीक है. So we will stop here. So thank you so much for the listening. Bye bye. ठीक है? Take care. We will meet tomorrow.